Hello students, once again welcome back to my YouTube channel, The Magic of Math. Students, don't forget to subscribe, like and comment on my channel. Today students, we will be doing the worksheet number 3 of class 10th, that is the pair of linear equations in two variables. So let's begin students. Worksheet number 3, pair of linear equations in two variables, class 10th. The first question goes that you have to find whether the given equations are linear or not. Linear in two variables. बेटा linear का मतलब होता है जिसकी डिग्री होती है 1. The degree is 1. अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4 is equal to 0. इसमें x की पावर is 1. No doubt. डिग्री 1 है. Highest power. Degree is the highest power. पर इसमें वेरिएबल एक ही है, that is x. So this is not a linear equation. Next, 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x and y एंड दोनों की हाईएस्ट पावर इज 1, तो वो लीनियर है. सो यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1. बेटा इसमें x की हाईएस्ट पावर आ गई 2. यू हैव द हाईएस्ट पावर एज 2, सो डिग्री इज 2. लीनियर में डिग्री इज 1. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ये कौन सी है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट, 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 5. यस, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड z एंड दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है. सो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यू हैव टू मैच द कॉलम. बेटा फर्स्ट में दिया हुआ है a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. बेटा there is an error. जब आपके पास a1 upon a2 और b1 upon b2 ही नहीं equal होता, so you don't need to go for the checking of c. So this is for exactly one solution, that is the unique solution. Then next, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This is the answer for no solution condition. Next, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसमें हमारे पास क्या होती हैं? Coincident lines. That is infinitely many solutions. For unique solution, you have intersecting lines like this. You have only one solution. For no solution, you have parallel lines जो कभी भी meet नहीं करती, तो आपके पास कोई भी solution नहीं होता. And for infinitely many, you have coincident lines, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है. So every part is a solution. I hope the question is clear to you. Question number 3, blanks. If two lines intersect at one point, then a pair of linear equations. ये मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then the linear equation has unique solution. Exactly one solution. Next, if two lines are parallel, then the pair of linear equation has no solution. उसका कोई भी solution नहीं होगा. Next, if two lines are coincident, मतलब कि एक के ऊपर एक हैं, then it has infinite solutions. Okay, students? So moving on to question number 4. Determine whether the pair of linear equations is consistent or inconsistent. बेटा consistent means कि आपके पास solution exist करता है, और inconsistent means solution exist नहीं करता. तो consistent तब होंगी जब आपके पास या तो unique solution होगा या infinite, मतलब कि first case और third case. Second case में जब आपके पास no solution होता है तो वो inconsistent होता है. तो हम इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. सबसे पहले मैं निकालूंगी a1, b1 एंड c1. देखो बेटा, जो a1, b1, c1 निकलते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन से निकलते हैं. मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. जो a1 होता है वो x का कोफिशिएंट होता है. इसमें आपको दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है? 1. b1 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 2. एंड c1 दैट इज द कांस्टेंट टर्म. अगर आपकी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है तो दोनों राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, और इफ इट इज ऑन द लेफ्ट देन दोनों लेफ्ट पे होनी चाहिए. ठीक है बेटा? देन मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन,
A2 is 3, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, B2 is 6 and C2 is 12। तो अब मैं इसके रेशोज निकालूंगी। A1/A2 मेरे पास आ गया 1/3, B1/B2 I will calculate, it will come out to be 2/6, again 1/3, and then I will find out C1/C2, that is 4/12, again 1/3। सो बेटा इसमें मेरे पास कौन सी वाली कंडीशन बन रही है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जब तीनों रेशोज इक्वल होती हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इसके थर्ड पार्ट में हमने किया था, ये वाले पार्ट में, जब तीनों रेशोज इक्वल होती हैं देन इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए देन इट इज़ कंसिस्टेंट। सो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब कि ये क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगेन यू विल फाइंड आउट A1/A2, A1/A2 करोगे देन यू विल गेट एज 2/-4, दैट इज -1/2। देन B1/B2 करोगे बेटा, you will get -7/14, that is again -1/2, and C1/C2 करोगे you will get 1/2। देखो पहले वाली दो नेगेटिव हैं, थर्ड वाली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगी सेकंड वाली कंडीशन, दैट इज A1/A2 और B1/B2 इक्वल है पर C1/C2 इक्वल नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन, इसमें नो सोल्यूशन निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा। सो इट इज इनकंसिस्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, you have to tell that the pair of linear equations x is equal to 6, x is equal to 2 and y is equal to 6 graphically represent dash lines। अब देखो बेटा, जब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, जब मैं इसके ग्राफ बनाती हूँ, x इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y कुछ भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, y 2 भी हो सकता है, y 3 भी हो सकता है, एनीथिंग। सो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनता है ऐसे, विच इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 2। एंड जब आपके पास y 6 है तो 1 2 3 4 5 6, so this is the value of y is equal to 6। so this is a graph which is parallel to x axis। अगर आप इनको इंटरसेक्ट एक्सपैंड करोगे तो ये दोनों लाइंस मिलेंगी आपस में, कौन से पॉइंट पे, 2 6। so this is a graph which is intersecting at 2,6। next question number 6, write any one linear equation of the line which is parallel to 3x plus 7y is equal to 4। बेटा देखो पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है पैरेलल के लिए, दैट इज नो सोल्यूशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो मुझे ऐसी रेशियो बनानी है, जैसे सपोज मैंने 3 के नीचे लिख दिया 6x, तो इन दोनों की रेशियो A1/A2 की कितनी आई, 1/2। अब मुझे यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको काट के मेरे पास 1/2 बने, दैट इज 7 2s are 14। तो B1/B2 भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो A1/A2 और B1/B2 मेरे पास इक्वल हो गया, A1/A2 और B1/B2 मेरे पास इक्वल हो गया। पर अब मुझे यहाँ पे C के नीचे ऐसा नंबर नहीं लिखना जिसको काट के 1/2 बने। सो आई विल पुट समथिंग अदर देन 8, दैट इज अप टू यू, आप जो मर्जी नंबर पुट कर सकते हो, दैट इज 9। तो मैंने C1/C2 मेरा कैलकुलेट करूंगी तो वो कितना बनेगा, 4/9। तो A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equal to C1/C2। सो ये मेरे पास पैरेलल की कंडीशन बन गई। सो इसी तरह आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाई है यू हैव टू मेक दैट, इट इज़ अप टू यू, यू कैन मेक एनी इक्वेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, determine the value of a if the system of linear equation will represent intersecting lines। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कि यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, उसके लिए होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो हमारे पास A1 है 3
एंड A2 है 9 एंड B1 है 2 एंड B2 है -a, तो मुझे ये इक्वल नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जब मैं कैंसिल करूँगी 1/3, सो -a ऊपर चला गया, 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया 6, सो a इज नॉट इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू आपने -6 नहीं लेनी, ठीक है बेटा, तब इट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, अदर देन -6 यू कैन टेक एनी वैल्यू, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइंस 2x - 3y इज इक्वल टू 6 एंड kx - 9y इज इक्वल टू 18 विल बी पैरेलल। बेटा इसमें a1/a2 हम पहले कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 हमारे पास आ गया 2/k, देन b1/b2 करेंगे, you will get as -3/-9, that is 1/3. So you will calculate c1/c2, that is 6/18, that is again 1/3. Students, you can see that b1/b2 and c1/c2 are already equal, ये पहले ही equal हैं, पर पैरेलल वाले में नो सोल्यूशन में हमारे पास कंडीशन होती है दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। सो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। इसमें पैरेलल की जगह यू विल राइट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट की मेरे पास कंडीशन होती है कि तीनों रेशोज बराबर होनी चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, ये पैरेलल का बन ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। सो 2/k इज इक्वल टू 1/3, सो k इज इक्वल टू 6। सो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस you get the value of k is equal to 6. Moving on to question number 9. You have to find the value of k for which the given equations k minus 3x plus 3y is equal to k and kx plus y is equal to 12. बेटा सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को ओपन करना है। We will open this equation. I will do this question here because the space is less. So आप इसको एक ओपन करोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन आप ऐसे ही लिखोगे k minus 3x plus 3y is equal to k and the second equation kx plus ky is equal to 12. तो अब आपको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों रेशियोज क्या होती हैं? इक्वल। सो a1/a2 दैट इज k minus 3/k is equal to 3/k is equal to k/12. अब आप जब इन दोनों को लोगे, सो 3 is equal multiply by 12 is equal to k multiply by k, so you get k square is equal to 36. So k you get square root of 36, that is plus or minus 6. तो आपकी वैल्यू ऑफ k +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। अब हम इन दोनों में पुट करके देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है k minus 3/k इज इक्वल टू 3/k, क्योंकि यहाँ पे भी वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं k को 6 पुट करूँगी तो यहाँ पे 3/6, 6 minus 3/6, दैट इज दोनों रेशोज आ जाएंगी 1/2। सो येस, k इज इक्वल टू 6 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो माई आंसर इज k इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स यू कैन पुट एंड सी, जब आप k को -6 पुट करोगे तो -6 - 3/-6 दैट इज -9/6। तो ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3/-6। सो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए -6 वाली वैल्यू हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। इट इज रिजेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो माई आंसर इज k इज इक्वल टू 6. Moving on to question number 10. For what value of k will the system of equations has a unique solution? तब होगा जब हमारे पास a1/a2 is not equal to b1/b2. बेटा in every question you have to find the value of a1, b1 and c1, a2, b2 and c2. a1, b1, c1 फर्स्ट इक्वेशन से निकलते हैं और a2, b2, c2 फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से निकलते हैं. So first of all I will find the value of a1, b1 and c1.
that is 1, 2 and 5, A2, B2 and C2, that is 3, K and 15. यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे है, फर्स्ट आई विल टेक इट टू राइट हैंड साइड क्योंकि इस इक्वेशन में इट इज ऑन राइट हैंड साइड. आइदर इन बोथ द इक्वेशंस द कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन राइट और ऑन लेफ्ट. अब इसमें एक राइट पे एक लेफ्ट पे है तो मैं उसको राइट पे ले गई. अब यूनिक के लिए मेरे पास होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. उसमें C वाला कोफिशिएंट तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं होती. सो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/K. सो K इज नॉट इक्वल टू 6. तो इस क्वेश्चन में आपके पास आ गया दैट K इज नॉट इक्वल टू 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. You have to find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So आप suppose कर लोगे let cost of 1 pencil. बेटा मैं यहाँ पे statement नहीं लिख रही because थोड़ी सी space less है. आपने पहले statement लिख ली है let cost of 1 pencil be rupees X and cost of 1 pen be rupee Y. Then you will write ATQ. ATQ means according to the question. जो मुझे question दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर 5 pencils लूँ तो उनका कॉस्ट कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज 5x. 7 पेन्स लूँ तो 7y इज इक्वल टू 50. एंड देन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 7 पेंसिल्स लूँ एंड 5 पेन्स लूँ दैट गिव्स यू ₹46. अब इसको हमने सॉल्व करना है. मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई. देखो ये क्वेश्चन बन गया पेयर. पेयर मतलब वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड वी हैव टू सॉल्व देम. तो मैं क्या करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई एंड सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई. तो मेरे एक्स वाले कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे. सो आई विल गेट 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 350 सॉरी एंड देन 35x plus 25y is equal to 46 multiplied by 5 you have 230. So you will subtract the equations. तो आपका ये x cancel हो गया. So you get 24y is equal to 120 is equal to 120. So y is equal to 120 upon 24 and on cancelling you will get the value of y as 5. अब ये जो आपकी वैल्यू ऑफ y निकली है 5, आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में. तो मैंने y की जगह 5 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में. सो 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50. सो 5x इज इक्वल टू 15. 50 माइनस 35 हो गया वहाँ जाके. So x is equal to 15 upon 5 that is 3. So x is equal to 3. बेटा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गया 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया ₹5. और एंड में आपने आंसर को ज़रूर सम अप करना है. स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है एंड में दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹5. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. That is solve the equations 3x minus y is equal to 3 and 7x plus 2y is equal to 2. बेटा देखो ये बहुत easy equation है. यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट कितना है y का 1. तो मैं अगर इसको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो मेरे पास -2y हो जाएगा. तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैंने कुछ नहीं किया सिंपल उसके नीचे लिख दिया. तो अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो आई गेट 13x इज इक्वल टू 26. सो x इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 दैट इज 2. x की जगह आपके पास 2 आ गया. देन आपने वो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है. 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. So you get the value of y as 3 and x as 2. End में you will write the answer x is equal to 2 and y is equal to 3. Next बेटा ग्राफ का क्वेश्चन है. I cannot show you the graph on this, so you'll have to do this question yourself. Question number 13. If you have any doubt, आप मुझे personally message कर देना. मैं आपको इसका solution I will send you.
14th क्वेश्चन भी ग्राफ का है, बट इसका आई विल गिव यू अ हिंट। इसमें आपने पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए आपने एक टेबल बनाना है। दैट इज यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस। देन जो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसके लिए भी आपने टेबल बनाना है। यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस। अब इसको करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह ले लेती हूँ 0, तो जब मैं x को 0 पुट करूँगी तो यू विल गेट y वैल्यू एज 1, एंड व्हेन मैं x को 1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू आएगी 2। सो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए, 0 1 एंड 1 2। देन इसके लिए आप करोगे x की जगह पे यू विल फिल 4, देन यू विल गेट y एज 0। x को 4 पुट करोगे तो 3 4 12, 12 12 माइनस होके 0, तो y की जगह आ जाएगा 0। एंड जब आप x की जगह 2 पुट करोगे बेटा तो 3 2 6, उधर जाके माइनस होएगा 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे यू विल गेट एज 3। सो जब आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे, आई जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया। तो मेरा यहाँ पे सपोज 0, ये 0 वाला पॉइंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 1 वाला पॉइंट आ गया मेरा, x का 0 y का 1, ये वाला पॉइंट x का 0 y का 1, एंड देन x का 1 y का 2, दैट इज ये वाला पॉइंट। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी लाइन तो ये ऐसे बनेगी। ओके, एंड जब सेकंड वाले की लाइन बनाऊंगी x का 4 y का 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, x का 4 y का 0, एंड x का 2 y का 3। बेटा x का 2 एंड y का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये इट विल बी लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट है मेरा 2,3, ये वाला पॉइंट है मेरा 4,0, और जो ये वाला पॉइंट है दैट इज -1,0। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली बनाओगे यू विल गेट, एंड ये मेरा ट्राइंगल बन गया। उन्होंने आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस पूछे थे, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं -1,0, 2,3 एंड 4,0। So moving on to the question number 15। बेटा ये question number 15 में there is some printing error। तो आप अपनी exercise 3.6 का question second का third part कर सकते हो, that is similar to this। इस question में there is some problem, इसमें कुछ है, मतलब कि कुछ figures गलत कोट की गए हैं। So similar question is exercise 3.6 का question number 2 का third part, so you can see it from there। Okay students, and then the last question, question number 16, the sum of digits of a 2-digit number is 9। बेटा मैं नंबर ले लूँगी x एंड y, टेंस प्लेस पे x एंड वंस प्लेस पे y, तो मेरा नंबर बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। अब वो कह रहे हैं डिजिट्स का सम दैट इज x प्लस y आपके पास आ जाता है 9। ये आपकी ATQ है, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने इक्वेशन बना ली। अब वो कह रहे हैं इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मेरा नंबर है 10x प्लस y, इसमें से 27 माइनस करूं, देन द डिजिट्स रिवर्स देयर पोजीशन, मतलब कि टेंस वाली पोजीशन वंस पोजीशन बन जाती है एंड वंस पोजीशन टेंस पोजीशन बन जाती है। सो यू गेट 10y प्लस x, रिवर्स हो गया मतलब यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। तो अब नंबर जैसे अगर सपोज 23 था तो वो 32 हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10 प्लस 3, टेंस वाली को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वंस, रिवर्स कर दिया तो अब 3 इंटू 10 प्लस 2। सो दिस इज द रिवर्स्ड नंबर। ठीक है बेटा, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 10x में x माइनस करोगे यू विल गेट 9x, y में 10y माइनस करोगे यू विल गेट -9y, 27 उधर ले जाओगे, इसमें से 9 कॉमन ले लो, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आप इन दोनों को लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे आप सब्सटीट्यूशन से करो,
चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो. सो देर आर मल्टीपल मेथड्स, यू कैन सॉल्व देम. सो मेरे पास सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 6. x को मैं 6 पुट कर दूंगी तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू y. सो आई गेट y इज इक्वल टू 3. तो मेरे पास नंबर बन गया x की प्लेस पे 6 एंड y की प्लेस पे 3. सो मेरा आंसर फाइनल है, माय फाइनल आंसर इज 63. रिवर्स्ड नंबर है बेटा. बेटा ये क्वेश्चंस चेक करने के लिए बहुत इजी होते हैं. अब जैसे नंबर है मेरे पास ओरिजिनल 63 बना, ठीक है. इसमें से 6 प्लस 3 करके आपके पास 9 आता है. इसमें से 27 माइनस करोगे. क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा था कि 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा. और 63 में से 27 माइनस करो तो वो कितना बन जाता है, 36. ठीक है. सो माई आंसर इज करेक्ट. मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ माई आंसर. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. If you have any doubt, then you can message me in the comment section. I will definitely reply. Till then, stay tuned to my channel. Do subscribe for the updates. Stay home, stay safe. Bye, students.